আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম। সকলকে। শুভেচ্ছা। শিক্ষক দিবসের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা। আমরা প্রত্যেকে জানি শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড। তারাই শিক্ষার্থীর মনের অন্ধকার দূর করেন, জ্বালিয়ে দেন জ্ঞানের প্রদীপ। আমাদের সকলের শিক্ষক সেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কেরাত দিয়ে আজকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করতে চলেছি। কেরাত পাঠের জন্য আহ্বান করছি মোহাম্মদ মাহবুবুল্লাহ মির্জা স্যারকে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ধন্যবাদ মাহবুবুল্লাহ মির্জা স্যারকে। আমরা আমাদের মাঝে উপস্থিত আজকের যে প্রধান অতিথি তিনি অলরেডি উপস্থিত হয়েছেন। আমরা বলেছিলাম 10:45-এ আসার কথা, কিন্তু আমাদের পরিবারের অংশ এবং আল আমিন পরিবারে আমরা তাকে সুস্বাগত জানাই সমীর সিদ্দিকী সাহেবকে। তার আগে দু চার কথা বলার জন্য নয়, আমি দিলদার হোসেন সাহেবকে দু চার কথা বলার জন্য অনুরোধ করব। আজকের দিনের তাৎপর্য ও সামগ্রিকভাবে আমাদের মাঝে যে আমরা মহান ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে পেয়েছি তাদের স্মৃতিচারণার উদ্দেশ্যে আল আমিন মিশন স্টাডি সার্কেলের ডিরেক্টর জনাব দিলদার হোসেন সাহেব।
Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning everybody. Happy Teachers Day. প্রথমেই আমি আমাদের সবার মহান শিক্ষক, আমাদের প্রিয় নবী রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার প্রতি দরুদ পাঠ করে শুরু করি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এবং তারপরে পরেই আমার আজকে যেহেতু শিক্ষক দিবস, সেই শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আমি আমার ব্যক্তিগত জায়গা থেকে, আমার বাল্যকাল থেকে এখনো পর্যন্ত যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা আমার জীবনকে আলোকিত করেছেন, তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা এবং সম্মান জানাচ্ছি। বিশেষ করে কিছু শিক্ষক শিক্ষিকা থাকেন যারা আমাদের জীবনে ভীষণ বড় একটা দাগ কাটেন, রিমার্কেবল একটা জায়গা গ্রহণ করেন। সেরকম কিছু শিক্ষক প্রত্যেকের জীবনে আছে এবং সেটা আমার জীবনেও আছে। এরকম কয়েকজন শিক্ষকের কথা খুব মনে পড়ে, প্রত্যেক সময় মনে পড়ে। যদি অকেশনালি আমরা সেটাকে এক্সপ্রেস করি, কিন্তু প্রত্যেক সময় আমাদের কাজের মধ্যে, আমাদের ভাবনার মধ্যে সে সমস্ত মানুষরা আমাদের সামনে চলে আসেন। তাদের কথা স্মরণ করি। আমার খুব প্রিয় আলামিন মিশনের কর্ণধার জনাব নুরুল ইসলাম সাহেব, দাদু ননীগোপাল চৌধুরী, প্রফেসর একে জালালউদ্দিন, এবং রিসেন্টলি যাকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছি মিস্টার সমীর আহমেদ সিদ্দিকী। এই প্রত্যেকেই আমার একদম অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা এবং সম্মান জানাচ্ছি। তার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের প্রত্যেকের জন্য মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি যাতে করে তারা সুস্থ থাকেন এবং তাদের জীবন যেন ওয়ার্দি হয়, তারা যেন আরো বেশি করে সমাজকে, আরো পৃথিবীকে আরো সুন্দরতর করার কাজে আরো অনেক দিন ধরে নিযুক্ত থাকতে পারেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমি I want to thank you everybody on behalf of my fellow brothers and sisters, because you know that I am an ex-student of Al-Amin Mission. So on behalf of my fellow brothers and sisters, I want to thank all the teachers community present here, that you are enlightening the life of our fellow brothers and sisters. So আজকের দিনটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন আমাদের সবার কাছে, এবং আমি অলরেডি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি সমীর আহমেদ সিদ্দিকী সাহেবকে। থ্যাংক ইউ স্যার, ইউ আর অলসো a great teacher in the journey of my life. You have enlightened us everybody, especially me. So thank you for being this part of this journey of my life. It is my pleasure to welcome you all to this noble and wonderful occasion of Teachers Day. আমরা শিক্ষক হিসেবে এই পৃথিবীকে কি দিতে পারি, শিক্ষক হিসেবে আমাদের রোল, আমাদের কি ডিউটি, আমাদের কি রেসপন্সিবিলিটি আছে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না, আমরা সবাই জানি। কিন্তু তবুও আমরা বারবার কিছু জিনিসকে স্মরণ করি, আমরা কিছু জিনিসকে রিক্যাপ করি, কিছু জিনিসকে রিলার্ন করি। এই জন্যেই যে আমরা হিউম্যান মাইন্ড, এবং হিউম্যান মাইন্ড সময়ে সময়ে অনেক সময় ভুলে যাই, বা অনেক সময় আমরা ডিস্ট্রাক্টেড হই, অনেক সময় আমরা আমাদের ডিরেকশন থেকে বিচ্যুত হই। সেই জন্য কিছু মানুষের দরকার পড়ে আবার আমাদেরকে সঠিক ডিরেকশনে নিয়ে আসার জন্য, সঠিক দিশাটা দেখানোর জন্য। এবং সেরকমই কিছু মানুষ আজকে দুজন আমাদের সামনে আছেন, জনাব নুরুল ইসলাম সাহেব এবং মিস্টার সমীর আহমেদ সিদ্দিকী সাহেব আছেন, যারা আমাদেরকে আবার স্মরণ করিয়ে দেবেন, মনে করিয়ে দেবেন যে আমাদের প্রকৃত রোল, আমাদের রেসপন্সিবিলিটি, ডিউটি এবং ডিরেকশন কি হওয়া উচিত। আমি স্মরণ করছি, লাস্ট 2 years a pandemic situation, we have
lost many of our family members, close family members. তাদের মধ্যে একজন আমাদের আলামিন মিশন পরিবারের একদম প্রথম থেকে থাকা এবং আমাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে এই পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আমাদের সুপারিনটেন্ডেন্ট জনাব হাশেম মল্লিক সাহেবকে আমরা হারিয়েছি এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে। তার স্মৃতির কথা মাথায় রেখে তার কাছ থেকে আমরা যা শিখেছি, তার হাত দিয়ে যত ছেলে মেয়ে বেরিয়েছে, তিনি যতগুলো মানুষের জীবনে আলো ফেলেছেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য তিনি যে অবদান রেখেছেন তার জন্য তিনি আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হন, এই দোয়া করুন তিনি যেন জান্নাতে থাকেন, যেন তার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা পান, সেই দোয়া করুন। আজকের এই দিন উপলক্ষে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই, শুধু এটা বলাই যে পৃথিবী একটা বিশাল চেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। উই আর গোয়িং থ্রু very fast changing situation, dynamic. We are going through a dynamic situation right now, and in this dynamic situation, in this global changing situation, the best quality we need, that is flexibility and creativity. So if you want to create something new in the life of our students, we need flexibility and creativity. And from this point of view, today's topic that Samir Ahmed Siddiqui has chosen is a very wonderful topic, and it's a very relevant topic for us. যে আমরা এর মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারবো যে প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে আমাদেরকে কিভাবে ফ্লেক্সিবল হতে হবে, কিভাবে আনলার্ন এবং রিলার্নের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, যাতে করে আমরা আমাদের বর্তমান ছেলে মেয়েদেরকে সঠিক জায়গাটা দিতে পারি। এবং আমি যে সমস্ত শিক্ষকের কথা আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে স্মরণ করলাম, তারা আমাকে কিন্তু আমি ফিজিক্সের ছাত্র, আমি স্টুডেন্ট অফ ফিজিক্স, বাট কেউ কিন্তু আমাকে ফিজিক্স শেখায়নি। যে সমস্ত টিচারের কথা আমি স্মরণ করলাম, এই বিশেষ করে যে সমস্ত শিক্ষকের কথা আমার আজকে মনে পড়লো, তারা কেউ কিন্তু আমাকে ফিজিক্স শেখায়নি। তারা যেটা শিখিয়েছেন সেটা হচ্ছে হাউ টু বি এমপ্যাথেটিক, হাউ টু বি আ গুড হিউম্যান বিং, হাউ টু মেক আ গুড মাইন্ড, এটা তারা শিখিয়েছেন। সেই জন্যে আমার মনে হয়েছে যে অ্যাপার্ট ফ্রম টিচিং সাবজেক্টস, দ্যাট ইজ অবভিয়াসলি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যে আমরা যে সমস্ত সাবজেক্ট পড়াই, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স, বায়োলজি, বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, দিস ইজ এ ডিফারেন্ট পার্ট। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা একজন শিশুকে একদম ছোট্টবেলা থেকে একটা নরম একটা শিশুর একটা বলা যেতে পারে কাদার ঢেলার মতো সেই নরম একটা শিশুকে আমরা কিভাবে শেপ দিচ্ছি, তার মনটাকে কিভাবে শেপিং করছি, তার মনটাকে কি করে সুন্দর করছি, তাকে কিভাবে ভাবতে শেখাচ্ছি, তাকে কিভাবে এই পৃথিবীকে দেখতে শেখাচ্ছি, তার অনুভূতিটা কিভাবে তৈরি করছি, সে এই অন্য মানুষ সম্পর্কে কি ধরনের শ্রদ্ধা পোষণ করে, অন্য মত সম্পর্কে তার কি রেসপেক্ট আছে, সে অন্য মানুষের জন্য কতটা ফ্রিডম, কতটা জায়গা সে দিতে চায়, এই সবকিছু কিন্তু মানে ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ আওয়ার টিচিং প্রসেস। সেই জন্যেই আরো বেশি করে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় আজকের এই দিনটি, যাকে স্মরণ করে আজকের দিনটি হয় আর কি। মানে আমাদের মহান শিক্ষক শ্রী সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, he was a great philosopher. তিনি শুধু সাবজেক্ট শিখিয়েছেন তা না, তিনি কিন্তু শিখিয়েছেন every aspect of life. তো সেই জন্য আজকে আমি আর বেশি কথা বলবো না, শুধু এটা বলতে চাই যে the best of education calls on our core traits of resilience, creativity and empathy in collaboration to thrive in our interconnected and interdependent world. So from this purpose, from this intention, we will have this occasion to enlighten us and welcome again Mr. Samir Ahmed Siddiqui.
আজকের দিনে আমরা স্মরণ করি আরো এক মহান মানুষ ডক্টর সাদাতুল্লাহ খান সাহেবকে, যিনি আমাদের হার্টকে কিভাবে পিউরিফাই করতে হয় তার শিক্ষা অনন্তকাল ধরে দিয়ে যাচ্ছেন, যেটা কোরআন শরীফে লেখা আছে, যেটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন। ছোট্ট ट्रिब्यूट हम सबको वेलकम करते हैं जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल व्यूअर हैं। पूछ रहे हैं कि बंगाली में होगा कि हिंदी में होगा। नहीं, ये प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह समीर साहब मेरे अजीज, मेरे फेवरेट सर, अभी सर हम लोग के सामने है, वेलकम कर रहे हैं। सर से सिर्फ 2 मिनट हम लोग चाहेंगे एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिखाने के लिए प्रोफेसर ए.के. जलालुद्दीन सर के ऊपर, जो हम लोग तैयार किए हैं। The light of the world, the beacon, the dark and the hope that gives us strength to survive is our teacher, our beacon, Professor Abul Khair Jalaluddin sir. আধুনিক শিক্ষাবিদের অন্যতম শিক্ষক অধ্যাপক ডাক্তার আব্দুল খায়ের জালালউদ্দিন। আজ এই শিক্ষক দিবসের দিন এশিয়ার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে স্মরণ না করে পারছি না। যদিও তিনি সদা সর্বদাই আমাদের মননে জাগ্রত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং যুগ্ম অধিকর্তা এনসিইআরটি এবং আন্তর্জাতিক পরামর্শদাতা ইউনেস্কোর, বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের পাঠ্যক্রমের রূপরেখার প্রণয়নকারী। শুধু তাই নয়, বর্তমানে যে পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে তার প্রাথমিক পাঠ্যক্রমেও তার অবদান অনস্বীকার্য। 1952 সালে বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী, ভারতবর্ষের সাক্ষরতার উপর তার গবেষণা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের মজিদ সৃষ্টি করেছে। মূল্যবোধের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সৃজনশীল শিক্ষক শিক্ষার্থীদের স্বশিক্ষণ কার্যকলাপের মাধ্যমে শিক্ষাদানই হলো তার গবেষণার মূল মন্ত্র। তার সৃষ্ট সংস্থা নিভের মাধ্যমে তিনি তার চিন্তাধারার শিক্ষার নতুন দিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে তার অবদানের জন্য কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ সম্মান ডিলিট উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন। জন্ম বাংলাদেশের বরিশালে। সর্বোপরি তিনি আল আমিন মিশনের শিক্ষা পরামর্শদাতা এবং আল আমিন সেন্টার ফর এডুকেশনাল রিসার্চ এবং ট্রেনিং এর চেয়ারম্যান পদে বর্তমানে আসীন। আমরা স্রষ্টার কাছে তার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। अब हम लोग वेलकम कर रहे हैं मेरे अजीज दोस्त समीर अहमद सिद्दीकी साहब को, फेमस आईएएस कोच, और जो आई जीनियस कर रहे हैं, जो अलिप्स कर रहे हैं, एकेडमी ऑफ लाइफ एंड फ्यूचरिस्टिक साइंस के जो को फाउंडर हैं और जो सच में एक जीनियस है। लेट अस वेलकम टू आवर फेवरेट सर एंड जीनियस समीर अहमद सिद्दीकी सर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम, सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मंच पर जो सबसे पहले मेरी सबसे फेवरेट हस्ती हैं, जिनको देखना भी अल्लाह की इबादत जैसा है, मोहम्मद नूरुल इस्लाम साहब, एक बहुत ही बेहतरीन जीनियस टीचर, जिनको अब मैं पहचानने लगा हूँ, जिनकी जीनियसनेस को ऐसे दिलदार हुसैन साहब, और मेरे दिल के बहुत करीब मेरे बड़े अजीज गियासुद्दीन मंडल साहब, और यहाँ पर आए बहुत बड़े बड़े सारे टीचर्स। सबसे पहले मैं आपको हैप्पी टीचर्स डे कहता हूँ, और ये कहते हुए वो दिन याद आते हैं जब हम बच्चे थे। तो आज के दिन हम अपनी स्कूल में टीचर बना करते, तो हम साड़ी पहनकर, कोट पहनकर हम जाते और वी यूज्ड टू परफॉर्म टीचिंग। हम वहाँ जाके टीचिंग करते। देखिए, सैलरी के हिसाब से, पैकेज के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव जॉब्स टीचिंग ना हो, लेकिन इज्जत के एतबार से दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर कोई पेशा, बेहतरीन अगर कोई प्रोफेशन है तो वो टीचिंग है। दुनिया में जितने पैगंबर आए, प्रॉफिट्स आए, वो सब टीचर थे। दुनिया में जितने बेहतरीन साइंटिस्ट हुए, वो सब टीचर्स थे। और टीचर बनना एक इतनी बड़ी बात है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जैसा टीचर बनना। लेकिन इंडिया में टीचर बनने का अपना ही मजा है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि टीचर इज अ वेरी सीरियस प्रोफेशन। तो मैं नूरुल इस्लाम साहब को जब देखता हूँ तो आई फील वेरी स्माइलिंग ऑन माई फेस। लेकिन दिलदार हुसैन साहब को जब मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा मैं डिसिप्लिन में आ जाता हूँ, बिकॉज ही इज अ वेरी सीरियस टीचर। तो उनको देख कर मैं सोचता हूँ कि
टीचर्स, इन्हें कब फन होना चाहिए, व्हेन शैल दे हैव द फन, उन्हें कब मजा आना चाहिए, उन्हें कब थोड़ा सा खुशी मनाने का मौका मिलना चाहिए। तो आज मैं आपको 2 स्टोरी सुना के फिर लेट्स हैव सम फन, थोड़ा सा स्पीच हो गई, तकरीर हो गई, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन देखा जाए कि हमारे अंदर का बच्चा अभी जिंदा है कि नहीं, कि हम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद इतने बड़े हो गए कि हम लौट कर अपने बचपन में नहीं जा पा रहे। तो इंडिया में टीचर बनने का अपना ही मजा है। एक बिल्कुल सच्ची घटना है राजस्थान के अलवर जिले की। वहां पर स्कूल में बच्चे नहीं आते थे, एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ 2002। वहाँ बच्चे नहीं आते थे, तो सॉरी 1996। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा, उन्होंने कहा कि गांव के बच्चे आते नहीं हैं, यहाँ पढ़ते नहीं हैं, बहुत गरीब लोग हैं, स्कूल चल नहीं रहा है, कुछ मदद करिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको 4 ट्रक भर के अनाज भेजा, कहा कि गरीब बच्चे हैं तो उनको खिलाओ पिलाओ, खाने पीने के चक्कर में वो स्कूल आएंगे। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने 4 ट्रक भर के अनाज भेजा, पकाने वाला नहीं भेजा, द कुक वे आर नॉट सेंट, जो उसको कुक करेंगे वो नहीं भेजा, ना उनकी कोई पेमेंट दी। तो बेचारे टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ के दे स्टार्टेड कुकिंग द फूड। तो सवेरे टीचर सारे आते काम पर और वो दिन भर खाना बनाते, और 3 o'clock के आसपास बच्चे खाना खाते और घर भाग जाते, वो वहां नहीं पढ़ते। तो उसके बाद गवर्नमेंट को समझ में आया, सो दे स्टार्टेड इवन गिविंग सम अलाउंसेस फॉर द कुक, और ऐसे हमारा मिड डे मील स्कीम है जो वो दुनिया में आया। एक ऐसा ही बहुत अच्छा सा वाकया था एक रूरल एरिया का। वहाँ एक कलेक्टर आया एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ विजिटिंग द स्कूल। वो स्कूल जाकर छापा मारते थे, जिसको कहते हैं ना हिंदी में कि ही यूज्ड टू गो एंड रेड द स्कूल्स इन ऑर्डर टू सी द क्वालिटी ऑफ द स्कूल, स्कूल की क्वालिटी देखने के लिए। तो गांव के सारे जो टीचर्स थे वो घबरा गए। तो गांव की एक पाठशाला में एक टीचर ने कहा कि कलेक्टर आते हैं, वो सवाल पूछते हैं एंड देन ही क्लोजेस द स्कूल, अगर स्कूल का क्वालिटी अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने बड़ी मेहनत से काम किया है। बोले क्या काम किया है? तो मैंने वो क्वेश्चंस पता कर लिए जो कलेक्टर पूछते हैं, तो मैं तुम्हें पहले रटा देता हूँ वो क्वेश्चंस। जैसे ही उन्होंने पूछा, यू मस्ट गिव द आंसर इंस्टेंटेनियस। तो उन्होंने, बच्चों ने कहा सर रटा दीजिए। तो कहा कि वो कलेक्टर जो है उनका ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो जहां भी जाते हैं वो ज्योग्राफी के सवाल पूछते हैं, और उनका फेवरेट सवाल है गांव में कि धरती का आकार क्या है, धरती का शेप क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ द प्लैनेट अर्थ। तो बच्चों ने कहा सर क्या है? तो कहा देखा तुम इतने नालायक हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता। तो धरती का आकार गोल है, धरती गोल है। तो बच्चों ने कहा हाँ सर धरती गोल है। उसने रटा दिया। 10 दिन बाद पूछा तो बच्चे भूल गए। तो उसने कहा यार तुम भूल जाते हो, तुम्हें क्लू देने की जरूरत है। तो कहा कैसे? तो कहा तुम में जो सबसे इंटेलिजेंट है वो कौन है? तो गांव के एक बच्चे का नाम लिया गया, और गांव में ऐसे ही नाम होते हैं। कहा कलुआ है सर। कलुआ को खड़ा किया गया। कहा कलुआ याद रखना, व्हेन द कलेक्टर कम्स और वो पूछेंगे कि धरती का आकार क्या है, तो तुम बता देना गोल है। और अगर तुम भूल जाओ तो मैं तुम्हें अपने तंबाकू की डिब्बी दिखाऊंगा, जो तंबाकू की डिब्बी होती है मैं ऐसे दिखाऊंगा तुमको, तुम याद कर लेना कि धरती का आकार जो है वो गोल है। तो कलेक्टर आए, उन्होंने बच्चों से पूछा तो बच्चों धरती का आकार क्या है? तो सब बच्चों ने कलुआ की तरफ उंगली कर दी, कहा इसी को पता है, इसी को खड़ा कर दो। बेचारा कलुआ नर्वस खड़ा हुआ। गांव का बच्चा था वो, गांव वालों ने उसका नाम कलुआ कलुआ रखा हुआ था। तो उससे पूछा गया कि हाँ बेटा बताओ धरती का आकार क्या है? तो उसने बड़ी अक्ल लगाई, उसको याद नहीं आ रहा था। तो टीचर ने अपनी तंबाकू की डिब्बी दिखाई। अब प्रॉब्लम ये था कि टीचर के पास 2 तंबाकू की डिब्बी थी। सोमवार से गुरुवार वो गोल लेकर आते थे, और शुक्रवार और शनिवार वो चपटी यानी रेक्टेंगल लेकर आते थे। तो कलुआ जोर से चिल्लाया और कहा हाँ सर मुझे पता है धरती का आकार क्या है। का क्या है? का धरती सोमवार से गुरुवार गोल होती है, शुक्रवार और शनिवार को सर वो चौकोर हो जाती है। तो इस तरह की बेहतरीन स्टोरीज के बीच में एक इतनी अच्छी स्टोरी और है जो बताती है कि टीचर होना क्या है। एक किसान का घर था, एंड दिस इज अ रियल हिस्ट्री। एक किसान का घर था, उसके पीछे दलदल था, उस दलदल में एक बच्चा डूब रहा था। तो किसान ने जब आवाज सुनी तो वो तेजी से दौड़ कर गया और दलदल से उस बच्चे को निकाल लिया। निकाल के उसके कपड़े साफ किए, उसको रोना बंद कराया, एंड ही सेंट हिम हिज होम। उसको चुप करा के सांत्वना देकर उन्होंने कहा घर जाओ।
बच्चा घर गया, अगले दिन वो अपने बड़े अमीर बाप के साथ घोड़ा गाड़ी में आया और बाप ने कहा कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो किसान ने कहा नहीं, ये मेरा फर्ज था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बाप ने कहा नहीं, मैं जरूर कुछ करना चाहता हूँ। तब तक कि किसान का बच्चा अंदर से खेलता हुआ है। तो कहा कि इसी बच्चे ने कल बताया था कि मेरा बच्चा दलदल में फंसा है, तो तुमने निकाला? कहा हाँ, मेरे बच्चे ने आके बताया कि ये बच्चा दलदल में फंसा है, तो मैंने जाकर निकाला। तो कहा मैं इस बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है, और इसकी सारी पढ़ाई का खर्च आज से मुझ पर है। तो उन्होंने उसको ले लिया, किसान के बच्चे को, और उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया उसी स्कूल में जिस स्कूल में वो अमीर का बच्चा पढ़ता था। थोड़े दिन बाद जब वो बड़े हुए तो उस बच्चे ने, किसान के बच्चे ने, एक दवा ढूंढी जिसे दुनिया की पहली एंटीबायोटिक कहते हैं, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जब उन्होंने ढूंढी तो ये अमीर का बच्चा इतना बीमार पड़ा, इतना बीमार पड़ा कि वो मरने वाला था। तो किसान के बच्चे ने फिर पेनिसिलिन के इंजेक्शन से इस अमीर के बच्चे की जान बचाई, जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक। आप सोचिए स्कूल और पढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि एक बच्चे ने 2 बार एक अमीर के बच्चे की जान बचाई। उस किसान के बच्चे का नाम हिस्ट्री में बहुत फेमस है। उस किसान के बच्चे का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जिन्होंने पहली एंटीबायोटिक दी। और उस अमीर के बच्चे का नाम भी दुनिया में बहुत फेमस है। उनका नाम विंस्टन चर्चिल है। तो जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल, एक बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने फादर को बुलाकर उनको दलदल से बचाया, और एक बार उन्होंने पेनिसिलिन का इंजेक्शन ढूंढकर उनकी जान बचाई। एक बहुत अच्छा स्टडी है कैलिफोर्निया का। वो स्टडी बताती है कि ब्राजील के स्लम्स में 20 बच्चों को जमा किया गया जो बहुत गरीब थे, जो बहुत अनपढ़ थे, जिनके माँ बाप नहीं थे, जो इनकी हालत बहुत खराब थी। उन 20 बच्चों को जमा करके ये देखा गया कि ये बड़े होकर क्या बनेंगे। जब 10 साल बाद यूनिवर्सिटी लौट कर गई तो उन्होंने देखा कि वो 20 बच्चे बहुत बड़े बड़े आदमी बन गए। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ा लीडर है, कोई बहुत बड़ा स्क्रिप्ट राइटर। तो उन बच्चों से उन्होंने पूछा पूछा कि एक बात बताओ बच्चों, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, कोई उम्मीद नहीं थी, अचानक उम्मीद कैसे आई? कहा सर, हमारे पास ना माँ बाप थे ना दौलत थी, लेकिन हमें फिर एक टीचर मिल गया। उस टीचर ने हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया, और आज हम जो भी हैं उस टीचर की बदौलत। तो ये वाले नोबल प्रोफेशन में जब हम आए हैं तो हम बहुत सीरियस हो गए हैं। वी ऑल हैव बिकम वेरी सीरियस। तो मैं आज आपका फन पार्ट देखना चाहता हूँ। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आई विल ब्रिंग सम क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। क्या हो गया है कि कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाते पढ़ाते हम सिंप्लिसिटी भूल गए। तो मैं आपको कुछ सवाल दिखाना चाहता हूँ, और उन सबके आंसर बहुत इजी और बहुत सिंपल है, बट यू हैव टू आंसर। हम इतना ज्यादा मेहनत करने लगे हैं कि हम सिंपल लिविंग भूल गए हैं। तो ये सवाल आपको एक सिंपल लिविंग देंगे। मैं आपको वो सवाल दिखाऊंगा, और गयासुद्दीन भाई से गुजारिश है कि पहला चैट पे जो आंसर आएगा उनका नाम नोट कर लीजिए, एंड देन वी विल हैव अ फाइनल राउंड बिटवीन दोज पीपल ओनली जिनका नाम चैट पर पहला आएगा। तो फॉलोइंग आर सम क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। हो सके तो सामने कागज और पेन ले आइए, ताकि ये जो इतने आसान सवाल है इनका जवाब देखें हमारे टीचर्स कैसे देते। हम बच्चों से बड़े हार्ड सवाल पूछते हैं, उनकी हार्ड सवाल की तैयारी करवाते हैं, वो नीट क्लियर कर लेते हैं, वो आईएएस क्लियर कर लेते हैं, फिर वो बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। लेकिन इन चीजों में कहीं हमारे अंदर का बच्चा तो नहीं मर गया। उन्हीं को टेस्ट करने के लिए कुछ सवाल है। तो नूरुल इस्लाम साहब की इजाजत से, इफ ही गिव्स मी द परमिशन, आई वांट टू शो यू सम वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एंड क्वेश्चन की एक बहुत खास बात रहेगी, जो पहला आंसर चैट पे देगा, that person will be counted in the final round. तो सवाल नंबर 1 आपके सामने है। जैसे ही मैं कहूंगा आपका समय शुरू होता है, चैट पे आपको इसका आंसर लिखना है। इजी सवाल है इसका। देखिए, किसी भी सवाल का जवाब अगर आप बहुत ज्यादा ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। जो आपके दिमाग में पहला आंसर आया आपको वो देना। 2 people are born in the same moment but they don't have the same birthday. How could this be? दोनों एक ही वक्त पैदा हुए लेकिन दोनों का बर्थडे सेम नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप इसका जवाब जो है सब लोगों को ट्राई करना है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
and your time starts now. टेन सेकेंड पे बता देना गयासुद्दीन भाई. गयासुद्दीन भाई 10 सेकेंड पे बता देना. टाइम अप. टाइम अप. आबिद नाखुदा साहब ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया, एंड ही वाज द फर्स्ट आल्सो. एंड सहान शेख साहब का भी. तो आबिद नाखुदा, सहान शेख साहब का नाम लिख लीजिए. एंड देवर परवेज वाहिद साहब ने भी इसका जवाब बिल्कुल सही दिया है. ठीक है, तो हियर इज द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए जवाब इजी है, लेकिन जवाब पहला देना पड़ेगा आपको. यू हैव टू, दे वर बोर्न इन द डिफरेंट टाइम जोन्स. हियर इज द सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है. लेट्स स्टार्ट. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. What is neither inside the house nor outside the house but a necessity for any house? Your time starts now. यासुद्दीन भाई 10 सेकंड पे टैप रखना. एकदम. 6, 7, 8, 9. स्टॉप. परवेज वाहिद साहब ने फिर इसका जवाब बहुत सही दिया है. विंडो इज द आंसर. सद्दाक हुसैन ने भी इसका जवाब दिया है. डोर इज द आंसर. तो विंडो में मासूम शेख, परवेज वाहिद, इन दोनों का नाम आप लिख लेना. हियर इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज वेरी इजी. तो इसको 5 ही सेकंड मिलेंगे. लेट्स सी हाउ यू कैन आंसर. What would your time starts now? What would your father's only sister-in-law be to you? टाइम अप. टाइम इज अप. देखना किसने पहले जवाब दिया है. आंसर मदर सही है. तो मदर किसने दिया? आबिद नाखुदा साहब ने फिर से दिया है. तौसीफ हुदा साहब ने भी दिया है और हाफिजा यास्मीन ने दिया है. हियर इज द नेक्स्ट आंसर. इसको सोचेंगे ग्रामेटिकली तो ही इसका आंसर आएगा. बताइए. देयर वाज अ प्लेन क्रैश एंड एवरी सिंगल पर्सन डाइड. बताइए हु सर्वाइव्ड. The pilot survived. Mary survived. एक मिनट. टाइम बताना. टाइम इज अप. आपको टाइम इज अप. अब्दुल राजिब शेख साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. There was a plane crash. Every single person died. Who survived? The married couples, they survived. सिंगल पर्सन जब आप आगे लगा दोगे तो वो ग्रामेटिकली उसका मतलब हो जाएगा those who are not married. तो मैरिड कपल दे सर्वाइव. अब थोड़ी सी क्वालिटी में उठा रहा हूँ. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाम बताइए. यू आर अलाउड टू ड्रॉ ओनली वन लाइन इन ऑर्डर टू मेक द इक्वेशन करेक्ट. एक लाइन ऐसी ड्रॉ करिए कि इक्वेशन करेक्ट हो जाए. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. टाइम अप. टाइम अप. साम साहब ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया. 1 प्लस को 4 बना देंगे. शेख मोहम्मद साहब और रेबेका, इनका भी नाम लिख लीजिए. यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे तो ये 545 हो जाएगा. प्लस 550 प्लस 555 हो जाएगा. ठीक है. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए इस तरह एक लाइन खींचने से ये इक्वेशन बिल्कुल सही हो जाएगा. अगला क्वेश्चन उससे आसान है. आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे. सो हियर इज द क्वेश्चन. ध्यान से देखिए. टाइम अप. सॉरी, टाइम स्टार्ट्स. टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप. अरे इस एक ने जवाब दिया. मुजीबुर रहमान साहब ने, परवेज वाहिद साहब, दोनों सही हैं. द आंसर इज साइलेंस. इट इज सो डेलिकेट कि साइलेंस बोलने से भी साइलेंस टूट जाता है. अगला बड़ा ट्रिकी है. शोएब आलम साहब के लिए अगला क्वेश्चन है. इट इज वेरी हार्ड. हियर इज योर क्वेश्चन. यू विल गेट 10 सेकेंड्स. मोबाइदुल मलिक साहब, शोएबुल आलम साहब, हियर इज द क्वेश्चन. टाइम स्टार्ट्स नाउ. A Yes. prisoner is told, if you tell a lie, we will hang you. If you tell the truth, we will shoot you. So, what did the prisoner say to save himself? नहीं, चुप रहना ऑप्शन नहीं है. If you tell a lie, बोलना पड़ेगा आपको. If you tell a lie, we will hang you. If you tell the truth, we will shoot you.
20 seconds over. 20 seconds ओवर हो गए। इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। Here is the answer. You will hang me. You will hang me. जैसे ही ये कहा तो उन्होंने कहा था कि we will hang you if you tell the truth. तो उसने कहा कि you will hang me. We will shoot you if you we will hang you if you tell a lie. And we will shoot you if you tell the truth. तो उसने उसी सेंटेंस में से निकाल कर ये बताया कि आप मुझे हैंग करोगे। अब अगर ये लोग उसको हैंग करते हैं तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन मी? आप उसको एक्सप्लेन करना चाहोगे इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूं? इज देयर समवन हु वुड लाइक टू ट्राई हिज हैंड हियर? কেউ যদি সুষমা हाँ। খাতুন, সুষমা খাতুন, আনমিউট ইয়োরসেলফ প্লিজ। সুষমা খাতুন हाँ। আনমিউট করুন। हाँ प्लीज। সুষমা খাতুন নিজেকে আনমিউট করুন। সুষমা খাতুন, ক্যান ইউ হিয়ার মি? প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ। ওকে, is there anyone who want to give the answer? Okay, there is no answer. ओके, तो इफ यू टेल अ लाई वी विल हैंग यू। अगर तुम झूठ बोलोगे तो हम तुम्हें हैंग कर देंगे, और अगर तुम सच बोलोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो प्रिजनर ने कहा कि यू विल हैंग मी, आप मुझे हैंग करोगे। अगर ये बात सच है, यू विल हैंग मी, तो सच बोलते ही उसको गोली मार देंगे, और अगर ये उसको गोली मार देंगे तो ये बात झूठ हो गई, और अगर ये बात झूठ हो गई तो आप उसको हैंग कर दोगे। तो इस तरह उसने सवाल को ही प्रिजनर पे टर्न कर दिया। आप समझे? उसने उठाकर जो क्वेश्चन है उसने टर्न कर दिया। उसने कहा यू विल हैंग मी। अब अगर ये लोग हैंग करते हैं तो ये बात सच हो गई। सच होने की सजा ये थी कि गोली मारना है, तो ये लोग गलत हो जाएंगे। और अगर इन्होंने इसको गोली मार दी, आप समझ रहे हो, गोली मारना, और अगर इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल हम आपको गोली मारेंगे, तो फिर ये बात जो है वो गलत हो गई, और गलत हो गई तो गोली नहीं मारना था, आपको हैंग करना था। इस तरह उसने सेंटेंस में उलझाकर प्रिजनर पर इसको टर्न कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा साइंस से है। साइंस के टीचर्स आगे आइए। आई वांट यू टू आंसर दिस वन। हाउ टू बर्न द मैच स्टिक यूजिंग वाटर। पानी का यूज करके आपको माचिस जलानी है। हाउ विल यू डू इट? हाउ विल यू डू इट? बाय यूजिंग वाटर। थोड़ा सा साइंस का है, इजी है, अकल मत लगाइए, अकल लगाने से रॉन्ग होगा। जस्ट गो फॉर द सिंप्लिसिटी, जस्ट गो फॉर द सिंप्लिसिटी। हाउ विल यू बर्न अ मैच स्टिक? ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके, कपूर लगा के, सोडियम लगा के, गैसोलीन लगा के। ऑल ब्यूटीफुल आंसर्स। टीचर्स है, अच्छा आंसर दे। पानी में आग लगा दी फ्रॉम द हॉट टैप से नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, पानी यूज करना है। सो देखिए सारे आंसर सही है, सारे आंसर लिखने पे नीट क्लियर हो जाता है, लेकिन इसका आंसर कुछ और है। जैसे हम लेंस से कागज जलाते हैं, वैसे हम एक कप में प्लास्टिक लेंगे और उस प्लास्टिक के बीच में पानी भर के एक ऐसा लेंस बनाएंगे। वी विल मेक अ लेंस लाइक दिस एंड देन वी विल गो इन द सन, और वहां पर हम उसमें से सूरज को कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंड दिस पर्टिकुलर पेपर विल स्टार्ट बर्निंग। अगला क्वेश्चन और आसान है, मैथमेटिक्स के टीचर्स के लिए है। आर वी रेडी? कैन आई सी अ रेज ऑफ हैंड? पहले एक रेज ऑफ हैंड दिखाइए मुझे कि हाँ हम रेडी हैं, तो मैं अगला क्वेश्चन सुनाता हूँ। थोड़ा सा फन है और हम लोग नोट कर रहे हैं विनर्स के नाम, सो दैट वी कैन हैव द फाइनल राउंड बिटवीन देम। हियर इज द क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ये 4 मैच स्टिक है। बाय मूविंग ओनली 1 मैच स्टिक आपको एक स्क्वायर बनाना है। हाउ विल यू डू इट? 4 मैच स्टिक है एंड बाय मूविंग ओनली 1 मैच स्टिक यू हैव टू मेक अ स्क्वायर। By using only 1 matchstick, you have to make a square. Moving only 1 matchstick. देखिए अहमद ने इसका जवाब बहुत अच्छा दिया है, हुमैरा ने और नूरुल हसन साहब ने। लेफ्ट वाली स्टिक को थोड़ा सा मूव करना है। इन तीनों के नाम लिख लीजिएगा सुदीप भाई। अहमद ने
और हसन साहब ने ये देखिए ओनली दिस मच, ये लेफ्ट वाली स्टिक है, इसको हल्का सा मूव करने से बीच में एक छोटा सा स्क्वायर बन गया है। यहाँ देख रहे हैं आप, ओनली बाय मूविंग वन स्टिक यू हैव टू मेक अ स्क्वायर। ये वाली हल्की सी मूव किया तो बीच में एक छोटा सा स्क्वायर बना। मैं कह रहा हूँ आपसे, आप अकल मत लगाइए। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स डे है, वी आर हैविंग सम फन। आपको मैं कुछ कॉइन्स दिखाता हूँ, आई वांट यू टू सी दिस कॉइन्स, आराम से इसको देखिए। एंड देन हियर इज द क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। By moving only one coin, you have to make 2 rows of 4 coins each. By moving only one coin, you have to make the 2 rows of, you have to make the by moving only one coin, you have to make the 2 rows of 4 coins each. यासुद्दीन भाई 20 सेकंड दे दीजिए, 5 सेकंड हो चुके हैं, उसके आगे गिनिए। लेट्स सी ये वाला क्वेश्चन कौन परफॉर्म करता है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टाइम अप। वेरी नाइस, राजा कुरैशी साहब ने इसका सही जवाब दिया, उनका नाम लिख लीजिए। ये वाला कॉइन उठाकर ये वाले कॉइन पे रख देंगे, तो जैसे ये वाला कॉइन उठा के ये वाले कॉइन पे रख देंगे, वी विल हैव 2 rows of 4 coins each। वेरी नाइस, ठीक है। कैन आई सी अ रेज ऑफ हैंड कि हाँ हमें अगला हार्ड क्वेश्चन देखना है। सो हियर इज द नेक्स्ट हार्ड क्वेश्चन। एक बार हाथ दिखाइए मुझे सब लोग कि वी आर रेडी। टीचर्स डे है, हम सब टीचर्स हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, कितनी सिंप्लिसिटी हमें याद है। सब लोगों ने हाथ नहीं उठाया। शो मी योर हैंड्स एवरीवन, लेट मी शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, इसके लिए पूरा 1 मिनट मिलेगा। गयासुद्दीन भाई कॉइन राउंड स्टार्ट करना। यहाँ देखिए, ये दिस इज द क्वेश्चन। कैन यू रीअरेंज 10 coins to make 5 rows with 4 coins? 5 rows। Can you rearrange 10 coins to make the 5 rows with 4 coins? And each line must be straight and must contain exactly 4 coins. इसके लिए आपको पूरे 2 मिनट मिलते हैं, if you can perform. Can you rearrange? Can you rearrange? अपने पास बहुत अच्छे टीचर है गयासुद्दीन भाई, मेनी गुड आंसर्स आर कमिंग। वेरी नाइस। अल अमीन में टीचर्स जबरदस्त हैं, ठीक है। लास्ट 10 seconds रिमेनिंग। Yes, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59। टाइम अप। टाइम अप। यहाँ पर एक ने नवाज शरीफ मंडल साहब का नाम लिख लीजिए। ही हैज गिवन अ वेरी करेक्ट आंसर। मेक स्टार शेप। स्टार शेप बनाना है और उसके ऊपर ये कॉइन्स ऐसे रखने हैं। अब आप गिन लीजिए, स्ट्रेट लाइन है 4, स्ट्रेट लाइन है 4, स्ट्रेट लाइन है 4, स्ट्रेट लाइन है 4, स्ट्रेट लाइन है 4। राजा शेख साहब, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हियर इज द नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पहला जवाब जो सही देगा उसका नाम ले लिया जाएगा। दिस इज वेरी इजी, इसलिए आपको सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे। डोंट टेक मच टाइम। ये है क्वेश्चन, जस्ट मूव वन ग्लास इन ऑर्डर टू गेट द फिगर बी। टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक ग्लास मूव करना है और फिगर बी बना के दिखाना है। एक ग्लास मूव करना है, आप 2 ग्लास मूव कर रहे हो, सेकंड बी और 4 बी नहीं, एक ग्लास मूव करना है बस। हाँ, एक मिनट, एक आंसर आ गया। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, टाइम हुआ है यासुद्दीन भाई? जी 27 सेकंड। नहीं, 10 सेकंड्स हो गए। हाँ 30 सेकंड्स हो गए। 30 सेकंड हो गए। इब्राहिम तनवीर शरीफ साहब का नाम लिख लीजिए। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये ग्लास उठाएंगे और उसका पूरा पानी इस ग्लास में डाल देंगे, एंड देन वी विल गेट एन ऑल्टरनेटली लाइक दिस ग्लास। यहाँ पे ये वाले ग्लास को उठा के वी विल गिव, दिस इज थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स जो हमको स्टूडेंट्स को पढ़ाना। इब्राहिम तनवीर शाह साहब इज द विनर। वी विल पिक अप दिस ग्लास एंड वी विल पुट द वाटर इन दिस ग्लास। वेरी नाइस। हियर इज द नेक्स्ट इजी वन। मैं चाहता हूं सब लोग इसका आंसर दें। हियर इज द नेक्स्ट वन। टीचर्स, आर यू रेडी? ये है, इन मैथ स्टिक्स को देख लीजिए। मूव 5 of them in such a way to get 9।
ও এটা কি এরকম করে দিলেন? and we will give you 1 minute for this. Move 5 of them in such a way that we get 9. हाथ ऊपर, आप पहला सही आंसर दीजिए, then Gyasuddin bhai will unmute you, you can explain your answer. Move 5 of them in such a way that we get 9. पहला हाथ किसने ऊंचा किया? रोमन लेटर 9 रॉन्ग है, पहले चैट पे लिखिए सही जवाब, थोड़ा सा भी सही होगा तो we will unmute you. रेबेका सुल्ताना, यस रेबेका सुल्ताना, बोलिए बोलिए, रेबेका सुल्ताना बोलून। unmute yourself. Yes, Rebecca Sultana, unmute yourself. मोहम्मद रमजान इज देयर। यस मोहम्मद रमजान मैथ के टीचर है, बोलिए मोहम्मद रमजान নিজেকে अनम्यूट करो। मोहम्मद रमजान নিজেকে अनम्यूट करो। नहीं हो रहा है? नहीं कर रहा है लग रहा है पहले का हाथ तक नाम ही दो, पहले का हाथ उठाया होगा। हेलो हाँ जी, सर बोलबो हाँ, NINE वेरी नाइस, इनका नाम लिख लीजिए। बहुत लोगों ने भी सही जवाब दिया है, बट शी वाज द फर्स्ट टू आंसर एंड रेज हर हैंड। ऐसे करेंगे, ये 1 स्टिक मूव हुआ, ये 2 स्टिक मूव हुआ और ये 3 को से E बन जाएगा, तो द थिंग्स विल बिकम NINE 9, ऐसे बन जाएगा 9। ठीक है, हियर इज द नेक्स्ट वेरी इजी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आर वी रेडी? तो बस मैं दिखा रहा हूँ, योर टाइम स्टार्ट्स, पूरा आपको 1 मिनट मिलेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहले आपको सही आंसर देना है, आपको ये बताना है कि पहली स्टिक कौन सी मूव होगी, देन ग्यासुद्दीन भाई विल अनम्यूट यू। तो आपको अपना पूरा आंसर एक्सप्लेन करना है। 1 2 3 गो। मूव ओनली 3 स्टिक्स टू मेक फिश फ्लोट इन अपोजिट डायरेक्शन। सिर्फ 3 स्टिक को मूव करिए सो दैट द फिश फ्लोट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। मूव ओनली 3 sticks. Move only 3 sticks to make the fish float in opposite direction. इब्राहिम तनवीर शरीफ साहब कहते हैं फर्स्ट 3 sticks। अच्छा, कौन सी ये नहीं पता। फर्स्ट 3 मतलब कौन सी, लेफ्ट से कि राइट से? लेफ्ट से, राइट से 3 sticks। First stick, first 50 3 left. Time is up, sir. नो 8 सेकंड लेफ्ट। अच्छा, 8 seconds left है। चलिए चलिए चलिए, सबसे पहले कौन सी स्टिक मूव करेंगे उतना आंसर दीजिए पहले। टाइम अप। टाइम इज अप। सो ये इसका आंसर है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये वाली स्टिक को यहाँ लगा देंगे, ठीक है, फिर ये वाली स्टिक को यहाँ ऊपर लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में ये वाली जो स्टिक है इसको उठा के यहाँ लगा देंगे एंड द फिश विल स्टार्ट फ्लोटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर से देखिए, सबसे पहले ये वाली स्टिक को यहाँ लगा देंगे एंड देन ये वाली स्टिक को वहां लगाने के बाद में दिस वन विल गो हियर, दिस वन विल गो हियर, ठीक है, ये बन गया। एंड देन दिस लास्ट वन विल गो हियर एंड द फिश विल स्टार्ट फ्लोटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका जवाब इब्राहिम तनवीर साहब ने दिया है, उनका नाम लिख लीजिए आप सबसे पहले। हियर इज द वन वेरी हार्ड क्वेश्चन, ज्यादा अकल लगाओगे तो नहीं होगा, बट द क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल। इसके लिए आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे। 50 वर्ड्स आपको बताने हैं विदाउट यूजिंग ABC। अगर आप 5 भी वर्ड बता दोगे तो हो जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 50 वर्ड्स 30 सेकेंड्स विदाउट यूजिंग ABC। वर्ड्स 50 वर्ड बनाने हैं। You have to tell even one that will do 50 words, 30 seconds without using ABC. Teachers, थर्टी सेकेंड होते ही बताना ग्यासुद्दीन भाई, मैं देख रहा हूँ किस किसने सही जवाब दिया। 30 सेकंड्स हो गया। नवाज शरीफ साहब ने इसका सही जवाब दिया है 1
ONE1 TWO2 THREE से लेके 50 तक कहीं भी ABCD नहीं आता। ये बात आपको नहीं पता थी, आज पता चली। असल में हम टीचर बन गए तो हमने इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ाना शुरू कर दी कि हमें आसान चीजें नहीं आती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से किसी की भी स्पेलिंग में ABCD नहीं आता। सो उन्होंने सबसे पहले इसका सही जवाब दिया है। एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन, फाइनल राउंड का एकदम लास्ट क्वेश्चन है ये। तो सबसे ज्यादा कुछ नाम रिपीट हुए ग्यासुद्दीन भाई, आखिरी में आप उनको अनाउंस करना, दे आर द विनर्स, ठीक है? तो हियर इज द लास्ट राउंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन, आई वांट यू टू ट्राई। इससे पहले आई वांट टू सी अ रेज ऑफ हैंड। आखिरी क्वेश्चन है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये अभी अभी एक कंपनी में पूछा गया था फॉर अ वेरी बिग टास्क, बहुत बड़ी पोस्ट के लिए पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन इज सो ब्यूटीफुल। एक बहुत बड़ी जर्मन कंपनी में इंटरव्यू के वक्त मेरे स्टूडेंट से ये पूछा गया, मैंने वहां से ये क्वेश्चन लाया है। आई वांट यू टू आंसर एवरीवन। ये एक ऐसा आंसर है जो सीधा आपको विनर बनाएगा। हियर इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉइन्स वुड यू नीड टू मेजर द हाइट ऑफ बुर्ज अल खलीफा? 1 मिनट पूरा मिलता है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाउ मेनी कॉइन्स वुड यू नीड टू मेजर द हाइट ऑफ बुर्ज अल खलीफा? How many coins would you need to measure the height of Burj Al Khalifa? अहमद साहब का जो है माइक अनम्यूट कर दीजिए। He has given the answer. यासुद्दीन भाई, अहमद साहब को। अहमद साहब जी। जी ए मोहम्मद आपको अनम्यूट कीजिए। ए मोहम्मद साहब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एम अहमद, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। और एक है शेख अहमद, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शेख अहमद, I have given you the unmute option. Please unmute yourself. हो गया। प्लीज एक्सप्लेन द आंसर। जी, प्लीज एक्सप्लेन द आंसर। Ahmad sir, please explain your answer. अच्छा, रीता दत्ता से पूछिए। She has given the next correct answer. रीता अनम्यूट करो নিজেকে। रीता मैम নিজেকে अनम्यूट करो। Yes. The statue, actually the statue is like one figure, মানে one আপনি one বাংলা বাংলায় বলুন, আমরা ট্রান্সলেট করে one figure হাইটটাই ওরকম অ্যাকচুয়ালি, দ্যাটস ওয়াই ওটার মানে খলিফা টাওয়ারের স্ট্রাকচারটা ওয়ান এর মতো। नहीं, मैं नहीं समझा ग्यासुद्दीन भाई क्या। ये वो बोलना चाह रहे हैं कि 1 रुपीस का कॉइन का जो स्ट्रक्चर है और बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर एक ही टाइप का है। नहीं, रॉन्ग आंसर है। तो नेक्स्ट इज मिफ्ताहुल जन्नत, उन्होंने सही आंसर दिया। पूछना जो मिफ्ताहुल जन्नत, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। मिफ्ताहुल जन्नत, यस। हाँ सर, मैं बुर्ज खलीफा को मापने के लिए मेरा कॉइन को मेरा आंखों के सामने रखूंगा कि माने पूरा बुर्ज खलीफा टावर मेरे आंखों में एक कॉइन की तरह आ जाए। सो ऐसे मैं मेजर कर पाऊंगा कि एक कॉइन से पूरा खलीफा आ रहा है। नहीं, रॉन्ग आंसर है। हु इज द नेक्स्ट वन? इब्राहिम तनवीर अशरफ को आप एक बार वो करके देखिए, अनम्यूट। ही हैज गिवन द नेक्स्ट आंसर। इब्राहिम, yes, please unmute yourself. Ibrahim Tanvir, in Ibrahim Tanvir Sharif, yes. Can you start your अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बताइए। हाउ विल यू मेजर द हाइट ऑफ बुर्ज अल खलीफा बाय यूजिंग 1 कॉइन? सर बाय टॉसिंग इट। बाय टॉसिंग इट? कैसे? हाँ सर, ये जो स्ट्रक्चर आप सामने दिखा है सर, ये रियल बुर्ज खलीफा तो है नहीं। आई मीन नहीं, रियल बुर्ज अल खलीफा की हाइट मेजर करना है। द आंसर इज रॉन्ग। सो हियर इज द आंसर एवरीवन। कोई और है जो जवाब देना चाहता है? चैट में लिखिए। नहीं सर, मुझे देना है, मुझे आई नो द करेक्ट आंसर। यस, मोहम्मद बिलाल को करिए अनम्यूट। ही हैज गिवन वेरी करेक्ट आंसर। बिलाल साहब, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ?
नहीं है। बिलाल साहब, मोहम्मद बिलाल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्लीज बताइए। सर ये फिजिक्स के फॉर्मूले भी हम बुर्ज खलीफा के टॉप पे जाएंगे वेरी नाइस, और कॉइन को वहां से जमीन पे छोड़ेंगे, वेरी उसका नाइस, टाइम कैलकुलेट करेंगे वेरी नाइस। और तो उससे क्या मिलेगा पहले ये बताओ। टाइम मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा टाइम मिल जाएगा, वेरी नाइस। और फिर उसकी वेलोसिटी के फॉर्मूले से हम लोग उसको जो है ना अर्थ डिस्टेंस की फाइंड वेलोसिटी आउट से हमको करते हैं। एक्सीलरेशन मिल जाएगा, वेरी जी, नाइस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी स्पीड बाय अपॉन टाइम, उसको मॉडिफाई करेंगे। v इज इक्वल टू h/t के फॉर्मूले से हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिलाल भाई क्रिस्टियन स्कूल के मालिक हैं ये, आप इनको देखिए। ही सेज हम बुर्ज अल खलीफा पे जाएंगे, वहां पे अपने क्लॉक को स्टार्ट करेंगे, कॉइन को ड्रॉप करेंगे। जैसे ही कॉइन नीचे टच करेगा, हमारा फ्रेंड इमीडिएटली स्टॉप वॉच को क्लोज करेगा, एग्जैक्ट टाइम हमको मिल जाएगा। ये टाइम मिल गया तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ग्रेविटी से लेंगे, 9.8 मीटर पर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में डालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 है और a और t हमारे पास है। ये फाइन एक्सीलरेशन इसका है 9.8 और t जो है, by using this formula we can calculate the height of Burj Al Khalifa। ऐसे ही बस मन किया कि आज कुछ पढ़ाऊं नहीं, बस आज पूछ लूं, तो इसलिए मैंने पूछ लिया। गयासुद्दीन भाई, who all are the winners? तो बिलाल सर पहले विनर हो गए ना, लास्ट वाला जो थे वही विनर। बिलाल साहब एक है, और दो लोगों का नाम बताइए। ये नवाज शरीफ मंडल हाँ, एंड इब्राहिम तनवीर शरीफ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अ बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। बहुत अच्छा। लेकिन मैं एक बहुत अच्छी चीज पूछता हूँ, तीनों का बहुत 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 शानदार, बहुत अच्छी चीज आपने जवाब दी। एक लास्ट क्वेश्चन है, अभी भी उम्मीद बाकी है और मुझे जल्दी से इसका आंसर चाहिए क्योंकि टाइम हो चुका है हमारा। क्वेश्चन इज दिस कि फायर जो है ये सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है? फायर जो है वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? प्लीज राइट इन द चैट। हाँ, एक बढ़िया आंसर आया है, बहुत अच्छा आंसर आ गया एक। हाँ, अल्तमश फैसल साहब ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है, केमिकल रिएक्शन। तो आज का ये प्रोग्राम खत्म करने से पहले, केमिकल रिएक्शन अल्तमश साहब का बिल्कुल सही आंसर है। नाइदर इट इज सॉलिड, नॉर इट इज लिक्विड, नॉर इट इज गैस, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो एक स्टूडेंट था, उससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ था, बहुत प्यारा क्वेश्चन हुआ था कि देयर इज वन बस स्टॉप, एक बस स्टॉप है और उस पर 3 लोग खड़े हैं। एक बुढ़िया है जिसे अगर इलाज नहीं मिला तो थोड़ी देर में मर जाएगी। शी इज अ वेरी ओल्ड लेडी, बहुत बीमार है, अगर इलाज नहीं मिला तो मर जाएगी। एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा आपका दोस्त है, जब आप गरीब थे तो उसने दोस्ती निभाई थी और फ्री में आपका ऑपरेशन किया, फ्री में आपका ऑपरेशन किया। और एक खूबसूरत लड़की है जिससे आप हमेशा शादी करना चाहते थे, और आखिरी बस जा चुकी है, बारिश होने वाली है, आपकी स्कूटर पे सिर्फ एक सीट है। तो ये सवाल है कि आप इन तीनों में से किसको लिफ्ट देंगे? आप इन तीनों में से किसको, आपको आंसर चैट में लिखना है, आप इन तीनों में से किसको लिफ्ट देंगे? ओल्ड लेडी को देंगे, राजीव साहब ने लिखा, वेरी नाइस आंसर। एंड और बताइए, वेरी ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी, वेरी नाइस। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इसका आंसर बहुत अच्छा दिया है, बस उसी पे आज की क्लास खत्म करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने जो आंसर दिया, उस बच्चे ने वही आंसर दिया। तो उसने कहा मैं स्कूटर की चाबी डॉक्टर को दूंगा और उससे कहूंगा कि ओल्ड लेडी को हॉस्पिटल ले जाओ और उसका इलाज करो, और मैं अपनी मोहब्बत के साथ वहां पानी में भीगूंगा, क्या पता ऐसा मौका मिले ना मिले। तो मैं अपने स्कूटर की चाबी जो है वो डॉक्टर को दूंगा, एंड आई विल आस्क द डॉक्टर कि ओल्ड लेडी को हॉस्पिटल ले जाइए, उसका इलाज करिए, और मैं वहां पर जो अपने प्यार के साथ पानी में खड़ा रहूंगा, क्योंकि ऐसा मौका फिर मिले ना मिले। एंड ही वाज सिलेक्टेड। तो फॉलोइंग आर द थिंग्स। बस मैं टीचर से जाते जाते एक छोटी सी लाइन कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर टुमारो। और जो टुमारो है वो बहुत, जो टुमारो है वो बहुत खतरनाक है। वो कितना खतरनाक है बस, और वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो हमें चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग। देखिए, अब टीचर का काम बदल गया है।
टीचर का काम पढ़ाना नहीं रह गया है, टीचर का काम असिस्टिंग डिस्कवरी हो गया है। वी हैव टू असिस्ट आवर चिल्ड्रन इन रिसर्च और उनको कल के लिए तैयार करना है। तो जब कल के लिए हम तैयार करते हैं किसी भी बच्चों को, तो वी ऑलवेज प्रिपेयर देम इन अकॉर्डेंस विद द टुमारो दैट इज अबाउट टू कम, जो कल आने वाला है। और जो कल आने वाला है वो टेक्नोलॉजी का है, गैजेट्स का है, इंफॉर्मेशन भरी पड़ी होगी। एलेक्सा हर सवाल का जवाब देती होगी, सीरी हमारा टीवी चालू करता होगा, सीरी हमारे पंखे को सेट करता होगा, सीरी रिजर्वेशन में कितनी सीट्स खाली है ये बताता होगा, सीरी एलेक्सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, गांधी जी किस दिन गुजरे थे, गांधी जी कितने बजे मरे थे, हर चीज एलेक्सा, सीरी, विकिपीडिया, गूगल बताता होगा। आज दुनिया का सबसे बड़ा टीचर गूगल बन गया है। 6 बिलियन क्वेरीज का जवाब, 6 अरब क्वेरीज का जवाब गूगल एक दिन में देता है। यानी आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है अभी तक 150 करोड़ क्वेरीज का जवाब गूगल दे चुका है। इस दौर के लिए जब हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं तो हमें अपने बच्चों में प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ऐसे सवाल जिनका गूगल आंसर ना दे पाए। तो इतनी सारी लड़ाइयां पानीपत में क्यों हुई, पानीपत में कौन कौन सी लड़ाइयां हुई, गूगल ये बता सकता है। पर इतनी सारी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई, व्हाई सो मेनी बैटल्स वेयर फॉट इन पानीपत, ये जवाब गूगल नहीं दे सकते। गांधी जी और आम्बेडकर, इनमें से दलित और पीड़ितों के लिए सबसे अच्छा कौन था, ये जवाब गूगल नहीं दे सकता। गांधी जी ने दलितों और पिछड़ों के लिए क्या किया, ये गूगल बता सकता है। आम्बेडकर जी ने दलितों और पिछड़ों के लिए क्या किया, ये गूगल बता सकता है। लेकिन गांधी जी और आम्बेडकर में ज्यादा अच्छा कौन था, ये बात सिर्फ टीचर बता सकता है। तो माहिउल हक साहब ने लिखा है, टीचर की डेफिनेशन बिल्कुल चेंज हो गई। अब आप बहुत सारा नॉलेज लाकर बच्चे के सर में मत पटकिए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन लाकर मत पटकिए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में मत डालिए, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सिर्फ एक माउस के क्लिक से दूर है। बच्चा एक माउस क्लिक करेगा, उसे हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन टीचर वो काम कर सकता है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। टीचर उन्हें उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना सिखा सकता है। टीचर उनको ये सिखा सकता है कि एक कॉइन से बुर्ज अल खलीफा की हाइट कैसे नापी जा सकती है। टीचर उनको ये सिखा सकता है कि पानी से माचिस कैसे जलाई जा सकती है। टीचर उनको ये सिखा सकता है कि ग्रामेटिकली सेंटेंस को चेंज करके अपनी जान कैसे बचाई जा सकती है। ये चीजें गूगल नहीं बता सकता। इसके लिए आज भी एक टीचर की जरूरत पड़ती है। तो आप मेरी बात को समझिए और मैं जो आपसे कहना चाहता हूं उसको समझिए। इंफॉर्मेशन को जब हम प्रोसेस कर, टाइम हो गया है मेरे ख्याल से। कोई अहमद साहब अभी बात कर रहे थे। ओके, इंफॉर्मेशन को जब हम, टीचर्स मेरी बात सुनिए, इंफॉर्मेशन को जब हम प्रोसेस करते हैं तो नॉलेज बनती है। ये नॉलेज का भी वक्त नहीं है। नॉलेज को जब हम प्रोसेस करते हैं तो विजडम बनता है। विजडम एक ऐसी चीज है जो गूगल कभी नहीं दे सकता, वरना दुनिया की हर चीज का जवाब एक ही टीचर के पास है, वो गूगल है। लेकिन विजडम यानी अपनी पढ़ी हुई चीज को कितनी क्वांटिटी में कहाँ लगाया जाए, ये बात गूगल को नहीं मालूम। ये बात सिर्फ टीचर को पता है। और टीचर क्या होता है, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, टीचर वो होता है जो अपने हाथ से बच्चे के दिमाग को ऐसे बच्चे को ऐसे छूता है कि उसका दिल जग जाता है और दिमाग खुल जाता है। ये वाला काम गूगल नहीं कर सकता। एक और लास्ट लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीचर बन के आपको क्या करना है। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती हैं और अब जाने वाली भी नहीं है। क्यों? जैसे ही हमारे बच्चों को आदत पड़ रही है, हमारे बच्चों को एकदम सुपरफिशियल आदत पड़ रही है। वो यूट्यूब का एक वीडियो देखते हैं 10 सेकंड के बाद वो दूसरा वीडियो देखते हैं, फिर 10 सेकंड के बाद वो तीसरा वीडियो देखते हैं। उन्हें ध्यान लगाना ही नहीं आता। वो किसी चीज को इतना गहरा पढ़ ही नहीं रहे कि वो एक्सपर्ट बने।
और ये जमाना एक्सपर्टीज का है। हर वो टीचर जो अपने बच्चों को एक्सपर्टीज में पढ़ाएगा, उसी टीचर का नाम सारी दुनिया याद रखेगी। हर वो टीचर जो अपने बच्चों को सिर्फ नॉलेज डंप करेगा, बच्चा विकिपीडिया को याद रखेगा, उस टीचर को याद नहीं रखेगा। तो आप अपने बच्चों को उस नॉलेज को लगाना सिखाइए, आप उनको कंटेक्स्ट में ले जाइए। अब किताब याद करने से काम नहीं होगा, अब किताब पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये एक टीचर का काम, ये एक टीचर का काम। और यही है वो टीचर। कहते हैं कि टीचर का पढ़ा हुआ कभी भी इरेज नहीं किया जा सकता। तो वो कौन सा है जो कभी इरेज नहीं किया जा सकता? वो ये नॉलेज का एप्लीकेशन है। जैसे सवाल मैंने पूछे, जैसे आपने जवाब दिए, हमारा बच्चा भी ऐसे ही सिंपल जवाबों से डर ना जाए, ये काम हमारा है। विजडम, प्रोसेसिंग, एनालिसिस, हाउ टू रीड अ बुक, हाउ टू एक्सपांड योर मेमोरी, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट रिटन, हाउ टू रीड इन बिटवीन द टू लाइन्स। ये जमाना चला जाएगा पर गूगल कभी नहीं कर पाएगा। यही काम आपको करना है, ऐसे कि गूगल की जगह रहे और दुनिया कहे कि एक टीचर मेरा ऐसा था जिसने मुझे वो चीज़ें बताई जो मरते दम तक मेरे काम आई। बस इसी दुआओं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम सर, शुक्रिया सर को। तो और सर के बाद बोलने वाले कुछ रहता नहीं हम लोग के पास, खाली कंटिन्यू करते हैं। सबके गुजारिश है, जैसे कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट सर के पास कोर्स कर रहे हैं, IGMES के आगे भी करेंगे, टीचर्स भी कर रहे हैं। आज के दिन